हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। और आज का वीडियो मैं बना रही हूँ बैंगलोर इंडिया से। मैं इंडिया आई हुई हूँ। मेरे साथ एक मेरे काफ़ी पुराने फ्रेंड जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग साथ में करी है ओरिएंटल कॉलेज से। तो आज शुभम यहाँ पे है। हाय शुभम, आप खुद को खुद ही इंट्रोड्यूस करो। Yeah, thank you, Arushi, for inviting me over here and giving me opportunity to contribute in Arushi's world. थैंक यू Okay. यार। So, hello guys, I am Shubham Singh Rathore and currently I work as an SD2 or senior software engineer in one of the leading product-based company in the fintech market based on UK. And moreover, I do have experience of around 3.5 years, and I've been in Bangalore for like last 24 months. ओके, So 2 yeah, इयर्स हो गया 2 years, मतलब yeah. आपको। तो अभी लाइक मतलब शुभम, आप अपन ने लाइक 2020 में ग्रेजुएशन किया था ओरिएंटल से। एक तो हम लोग वो कोविड वाला बैच है जिनको कभी कॉन्वोकेशन नहीं मिला। तो We are हम the अभी lucky ones. We are वी the आर द chosen लकी ones. वंस। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि द लास्ट टाइम वी मेट हम लोग को प्रॉबेबली तब रियलाइज भी नहीं हुआ होगा कि वो हमारा आखिरी टाइम था, क्योंकि हमको लगा होगा कि उसके बाद कॉन्वोकेशन पे भी मिलेंगे। बट हाँ, तो उस समय आपने TCS ज्वाइन किया था, Yeah, राइट? तो फिर TCS से अभी तक का आपका लाइक ट्रांजिशन लाइक कैसा रहा है 4 साल की जर्नी? yeah. So coming back to that, when I graduated, so हाँ, at that time TCS was the first company which I chose. Okay, ओके, but during that time the job market was very lean, I can say, because COVID उस time पे start ही हुआ था, and हाँ, moreover companies were looking for work from home shifts. They are just structuring up everything, right? हाँ, So for the initial 3.5 years, I was there in TCS. I must say I got a lot of learning opportunities over there, and apart from others' perspectives, I must हाँ, say it was a hell joy for me as a ride. मेरे को बहुत enjoy हुआ उधर पे, and हाँ। तो फिर एक ही टाइम आ गया कि यार अब सैलरी हाइक चाहिए, yeah. कुछ लाइफ में नया ग्रोथ चाहिए। Yes, yes, तो yes, yes. वैसे करके तो ओके। वैसे करके then I went to the all the portals पे मैंने log in करा कि I have to update myself and all. हाँ, और फिर उसके बाद for around 6 months I was in this preparation journey कि what next, because 3.5 year I was in TCS but now I हाँ, have to switch now, so I have to be market ready. So I did those coding and all in online हाँ। platforms. I have tried मतलब hackathons काफी and all. प्रेपरेशन Yeah. उस चीज के लिए लगा। And thereafter I got couple of offers as well. So the best one among them was my current company, so I went to that. ओके। Yeah. तो शुभम, आपने जैसे अभी US आने का भी बीच में सोचा था, तब अपनी बात भी हुई थी कि आप कंसिडर कर रहे हो मास्टर्स करना। तो वो प्लान आपने अभी के लिए फिर ड्रॉप कर दिया है ना? Yes, yes, तो yes. उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपने इंडिया में अभी के लिए रहना क्यों डिसाइड किया? Yeah. To be honest, Arushi, I did a lot of research on that topic हम्म। because यार ये एक बड़ा financial decision है, right? हाँ, Because डेफिनेटली यार, मतलब you know आपकी better than this, मतलब right? बहुत सारा सेविंग आपका एक लाइफ वही का इसमें जाता है या लोन जाता है। वही तो वही So to take such a decision, you must figure out you must cover all the corner cases as well कि कहाँ पे इसका issue हो सकता है, impact हो सकता है आगे चल के. हाँ, You must have a backup plan, right? क्योंकि 2 years बाद you don't know कि market कैसा रहेगा, क्या हाँ, रहेगा, right? तो मैंने इसके बारे में खूब रिसर्च किया एंड देन आई फाउंड कि एक्चुअली इंडिया में जब मैं था अराउंड जनवरी itself, so I was getting a lot of opportunities since I have 3.5 years of experience now. हाँ, So for me, SD2 job roles are also open to me. Okay. हाँ, हाँ, तो उसके बाद मैंने, क्योंकि initially for this to get into MS, हाँ, you need to give GRE exam, right? हाँ, तो उसके लिए भी you need time. तो मेरा प्रेपरेशन प्लान टाइम, ये हाँ, था कि फर्स्ट आई विल गेट अ जॉब बैक इन इंडिया और हाँ, उसके बाद न्यू जॉब के साथ साथ आई विल प्रिपेयर. ओके. बट हुआ ये कि फिर आई डिड अ कंपैरिजन कि जो वहाँ पे अगर कोई बंदा है MS करने के बाद हाँ, और जो बंदा यहाँ पर है इंडिया में, so there is not much difference because although you guys will say कि वो USD में कमा रहा है and हाँ, he is getting more, but there is a term like purchase power parity. Okay. हाँ, और वो जब आप कंपेयर करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, द अपॉर्चुनिटीज आई एम गेटिंग बैक इन इंडिया आर इमेंस. लाइक यहाँ पे मेरे को ऐसे भी ऑन साइट मिल सकता है कंपनी में, इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दे यूजुअली कॉल द गाइज. ओके. हाँ, सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो आई थॉट कि अभी प्लान ड्रॉप करना ज़्यादा सही है क्योंकि मार्केट जो है वो US का, हाँ, यूएस का बहुत खराब बहुत है। डिस्टर्ब है ना. So that's why for now, for this 1-2 years, I'm thinking to stay back in India हाँ, and to concentrate on my job. But definitely in future, I will give a shot to it.
मतलब फ्यूचर में यू नेवर नो व्हाट इज देयर, बट आई थिंक इस चीज़ पे, एंड आई थिंक दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो कि लाइक मास्टर्स बाहर परस्यू करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एंड आप अगर 1-2 साल बाद भी जाओगे इन अ सेफर एनवायरनमेंट, इन अ सेफर इकोनॉमी, तो बेटर होगा. तो आई फील कि यस इट, आई थिंक यू टुक अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. मतलब जब आप बोले कि रिसर्च करके किया, आपने काफ़ी सारे लोगों से बात करी, उन सभी का मार्केट पूछा, तो आई थिंक दैट वाज आई थिंक द बेस्ट वे टू डिसाइड दैट. तो अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि लोगों का परसेप्शन बहुत बार ऐसा रहता है कि जब वो यूएस डॉलर्स की लाइक सैलरी सुनते हैं वो उसको स्ट्रेट कन्वर्ट कर देते हैं आईएनआर में. एंड आई थिंक ये चीज़ मैंने कहा यूट्यूबर्स को भी करते हुए देखी है, एंड वो मुझे बहुत एब्सर्ड लगती है, क्योंकि आई मीन एट द एंड ये है कि आप उससे क्या कर पा रहे हो. तो मतलब इसमें शुभम का एक वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो शेयर करो अपना परसेप्शन. या सो थिंग इज लाइक जैसा आरुषि बोल रही थी, देयर इज अ परचेस पावर पैरिटी, राइट? सो उसमें जब अपन कन्वर्जन करते हैं ना, सो इट डजंट शो द करेक्ट इमेज. लाइक लोग बस ये चेक करते हैं कि अच्छा 1 CR मिल रहा है यूएस में, हाँ, है ना, बट पर ये तो है नहीं कि आप वो 1 CR इंडिया में स्पेंड करोगे कि वो correct. 1 CR होगा. मतलब आप उसमें वहाँ की करेंसी में ही स्पेंड भी कर रहे होगे, वहीं की करेंसी में रेंट भी पे कर रहे होगे. एग्जैक्टली. और ऊपर से मतलब मैं एक सिनेरियो बताता हूँ. लाइक इफ यू आर इन अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड इफ यू हैव 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, सम 3.5 to 5 years, हाँ, है ना, सो फॉर दैट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 25 to 35 LPA. इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. आई एम टेकिंग जस्ट एन एवरेज ऑफ दैट. हाँ यार, ऑब्वियसली वही, मतलब काफी बाकी तो वही कर सकता है. बट यूएस में आरुषि आई थिंक इट इज डिफरेंट, राइट? हाँ, सेम. तो वही ये परचेजिंग पावर पैरिटी के ही हिसाब से अगर आप इंडिया में लाइक 25 से 35 लाख के ब्रैकेट में अर्न कर रहे हो, तो वो यूएस डॉलर इक्विवेलेंट में अराउंड 100 से 120,000 डॉलर के बीच में ही आता है. तो बेसिकली आप यूएस में जो 100,000 डॉलर में कर पाओगे वो सेम लाइफस्टाइल आप सिमिलर तरह का यहाँ पे 25 से 30 लाख के आसपास में मतलब कर पाओगे. तो आई फील कि ये ज़्यादा फेयर तरीका है मतलब कंपेयर करने का कॉस्ट ऑफ लाइक लिविंग वगैरह. और जब व्हेन यू गो फॉर दिस एमएस ना, यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, तो ये सब चीजें वी हैव टू कंसीडर, राइट? डेफिनेटली वही. और फिर इससे तो पता चलता है, राइट? बिकॉज आरुषि इज सेइंग 100 to 120 के ना, राइट? यू सेड, है ना? तो फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल द, बिकॉज फॉर एमएस यू आर टेकिंग education loan, हाँ, and there are many things which you need to cover up, like whether fees and all, admission fee and all. Fees are cost of living every month like रहता है कि अगर आपने पार्ट टाइम जॉब नहीं किया है तो आई फील कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तो इसी चीज़ से कैलकुलेट होता है कि आपका एट द एंड जॉब आप लाइक कितना हाई सैलरी का कर पा रहे हो. बट एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि एक परसेप्शन ये है कि आप जाओ यूएस सिर्फ जोड़ के पैसा आ जाओ. हम लोग जो अभी वहाँ पे रह रहे हैं, हम अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ से उतना अग्री नहीं कर पाए हैं. हम लोगों ने ये देखा है कि आप यूएस में जाके बहुत ज़्यादा तब जोड़ पाते हो जब आप बहुत ज़्यादा कट डाउन कर दो अपने लाइक डे टू डे एक्सपेंसेस, कि आपका एंड गोल सिर्फ ये है कि आपको मतलब 3 साल के बाद में वापस ही आना है, कि आप 3 साल तक कुछ करोगे नहीं, बहुत सस्ते अपार्टमेंट में रहोगे. वरना यार मेरा एक्सपीरियंस एटलीस्ट ये रहा है कि अगर आप अर्न यूएस डॉलर्स में कर रहे हो तो आप वहाँ पे एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए स्पेंड भी वहीं, रेंट वहीं पे करोगे, ट्रिप्स लेने जाओगे तो ट्रैवल पे वहीं खर्च करोगे. तो दैट वे आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा कि आपको सिर्फ सेविंग्स का सोच के मतलब आने का डिसीजन लेना चाहिए. करेक्ट, एब्सोल्युटली कांट एग्री मोर. तो आज हम लोग को काफ़ी मज़ा आया है. हम लोग ऐसे पूरा वॉक करते करते काफ़ी कैंडिडली वीडियो शूट किया है. तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जो शुभम के लिए है वो ये है कि जैसे आपने अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया कि मतलब आप मास्टर्स करने का यूएस या मैं मतलब जाने का सोच रहे थे, देन यू गॉट अ बेटर जॉब एंड देन यू डिसाइडेड कि आपको अभी के लिए बैंगलोर में ही जॉब के साथ स्टे करना है. तो आई फील कि इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल भी. काफ़ी व्यूअर्स के मेरे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं कि कैसे डिसाइड करें. तो आप लाइक आपने ये डिसीजन कैसे लिया और कितना डिफिकल्ट था, लाइक गिवन कि वो डर रहता है ना कि आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, तो वो लाइक डिसीजन तक आप कैसे पहुंचे? और यार टू बी ऑनेस्ट आरुषि, ये डिसीजन टफ था मेरे लिए, राइट? क्योंकि एक तरफ आई वाज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर कि देयर इज लॉट ऑफ प्रेडिक्शन व्हिच आई वाज डूइंग कि हाँ 2 साल बाद एमएस होना चाहिए और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा होगा ओके. और यहाँ पे हो रहा था बैक इन इंडिया, बिकॉज आई वॉज गेटिंग एन ऑफर कि चलो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये तो अभी होगा, राइट? सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ थिंग्स. तो सीरियसली आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट,
बहुत चीजें वी हैव टू कंसीडर, राइट, कि कौन सा डिसीजन आगे चल के इफेक्ट करेगा, कि क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सक्सेस थी, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस थी, बट वो लॉन्ग टर्म में देयर इज नो गारंटी। लॉन्ग टर्म में भी जैसा मैंने भी चीज मैं कई बार बोलती हूँ कि आपको बेस्ट केस वर्स्ट केस दोनों कंसिडर करने चाहिए। वही और फिर बैकअप ऑप्शन, बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म में नहीं होता है या 2 साल बाद भी नो द सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन, राइट, तो बैकअप ऑप्शन क्या है, बिकॉज you will be taking loan and all, right? कि एक वो डर ऐसा कि अगर आप इस इतनी खराब इकोनॉमी में, जहाँ पे मतलब ये चीज़ मैं भी, जितने भी लोग आप लोग डीएम कर रहे हो, मैं आप लोग को यही चीज़ बोल रही हूँ कि इस समय यार इकोनॉमी का हाल तो बुरा है, मतलब बहुत बच्चों के ले ऑफ्स हुए हैं, बहुत बच्चों को जॉब्स मिले ही नहीं है। तो आई फील कि वो डिसीजन मतलब अभी का स्टेट देखते हुए आई फील आपने एक टफ कॉल लिया, बट एक आई थिंक एक इफेक्टिव कॉल भी लिया कि आई नो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट लाइक आपने जो अभी के डेटा को देखते हुए आई थिंक। बट अगेन गाइस, इंडिया की इकोनॉमी भी ऐसा नहीं है कि वी आर बूमिंग, मतलब सिचुएशन इंडिया में भी है यार बहुत बुरा, मतलब वर्ल्ड अभी वर्ल्ड वाइड ही। बट स्टेइंग बैक इन इंडिया वाज अ बिट लिटिल रिस्की फॉर मी, लिटिल एज कंपेयर्ड टू गोइंग आउट देयर, सो वो ज्यादा रिस्क होता है, वाज हायर फॉर यू। आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका भी है देखने का कि आपने ये कंपेयर किया कि ओके मे बी इसमें आपको कोई बेस्ट केस एविडेंटली नहीं पता था, सो यू चोज द लेस रिस्की केस फॉर नाउ, जिसमें लाइक स्टेक्स अभी के लिए कम हो कि इतने वॉलेटाइल मार्केट स्पेस में इतना बड़ा करियर चेंज। यही था। नहीं बट यार आज मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि शुभम एंड आई गो वे बैक टू लाइक 2016। हम लोग एक्चुअली आई थिंक हमारी फ्रेंडशिप ही ऐसे हुई थी कि हम लोग ओरिएंटल कॉलेज में जहाँ हम लोग ने इंजीनियरिंग करा है, हम वहाँ के परमानेंट एंकर्स थे, क्योंकि इसको भी पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक था, मुझे भी है। तो हम लोग को लाइक हर इवेंट में आई थिंक अपन लोग काफ़ी सारे इवेंट्स होस्ट करते रहते थे ऑडिटोरियम में, तो हम उसकी स्क्रिप्ट हमारे हाथ में होती थी, हम वो करते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज लाइक वन बिग मोमेंट कि बस स्क्रिप्ट करते करते टुडे वी आर शूटिंग अ व्लॉग टुगेदर, तो बहुत मजा आया। It's been 8 years of our friendship. हाँ यार इतना टाइम हो गया। But thank you so much for coming to Arushi's World today, and thank you for this opportunity, allowing me to contribute to Arushi's World. No यार, it was my pleasure. I really enjoyed this. I really enjoyed this too. और आप लोगों को कुछ भी questions हो इससे related तो please बताइएगा, and I'll see you in the next video.